Good morning, students. Today we are going to study Sarojini Naidu's Soul's Prayer, a poem. But before we start this poem, we will have a look on Sarojini Naidu's lifetime. Sarojini Naidu was born on 13 February 1879 in a Bengali family in Hyderabad, and she died on 2nd March 1949. She was an Indian political activist and poet, a proponent of civil rights, women's emancipation, and anti imperialistic ideas. She was an important figure in India's struggle for independence from colonial rule. Her work as a poet earned her the name Nightingale of India by Mahatma Gandhi. She was also called Bharat Kokila by Rabindranath Tagore. Sarojini Naidu was also appointed the president of Indian National Congress in 1925 and later became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of governor in the Dominion of India. Naidu's poetry includes both children's poems and other written on some serious themes including patriotism, romance, and tragedy. Now we will move towards to our poem Soul's Prayer. Sarojini Naidu was one of the most gifted Indian poets. Her poems are appreciated not only in India but also in abroad. Popularly known as the Nightingale of India, as I have already told you, this name was given to her by Mahatma Gandhi. Sarojini Naidu wrote in English about themes that are essentially Indian. Her poetry also reflects her love for her nation. Now, this poem, The Soul's Prayer, which we are going to read, reveals Sarojini Naidu's mystic vision. Here, the word mystic means आध्यात्मिक, रहस्यवादी, a person who believes in the realities of the beyond the life, beyond the death. The poem The Soul's Prayer reveals Sarojini Naidu's mystic vision. Vision means दृष्टि. तो ये जो पोएम है ये उनकी मिस्टिक विज़न को रिवील करती है, उजागर करती है, उनकी रहस्यवादी या गूढ़ जो दृष्टि है उसको ये पोएम रिफ्लेक्ट या रिवील करती है. अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, किस बारे में? लाइफ एंड डेथ की प्रॉब्लम्स के बारे में जो उनका मिस्टिक विजन है उसको ये बताती है. द पोएम इज एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द गॉड. द पोइट इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी ए चाइल्ड ऑफ 13 years old. She feels pride to take birth from his breath. हमारी जो कवियत्री है वो अपने आप को एक 13 साल की बच्ची के रूप में मानती है और वह इस बात में उसको बड़ा प्राइड है कि उसने उसकी ब्रेथ से
जन्म लिया है। किसकी ब्रेथ की बात हो रही है यहाँ पर? गॉड। हियर यू कैन clearly see the word his is written with bold letter H, and we all know that whenever God is written, it is always with the capital G, and if we use pronoun for him, it will take bold H, capital H. She pleads God, she requests God to reveal the meaning of life and death. These are the lines in which she is requesting him. Speak, Master, and reveal to me thine inmost laws of life and death. The poet prays to God to give her not only the bliss of life but also the pain and sufferings of life. She strongly believes that not only when she passes through the trials and tribulation of life, trials and tribulation means कठिनाइयाँ, पीड़ाएं, sufferings, her soul will get satisfied. Sarojini Naidu here says that she wants to enjoy trials and tribulations of their life, not only the happiness, she also wants to enjoy difficult situations, because only then her soul will get satisfied. She further asks God to explain her the most complex thing of what happens to one before one's birth and after one's death. वह गॉड से ये जो जटिल एक सवाल है कि एक आदमी के जीवन से पहले या उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, वह कहाँ जाता है, क्या उससे पहले भी कोई जीवन है, वो इन सब चीज़ों को जानना चाहती है इस पोएम के ज़रिए. शी वांट्स गॉड टू टेल दिस सीक्रेट टू हर. The God then answers her prayer. He promises her to provide her everything. He accepts to give her both the passionate rapture and despair. Rapture means a state of elated bliss, हर्षोन्माद, उमंग, उत्साह, बहुत ज़्यादा खुशी. Despair means निराशा. The God allows her to enjoy all emotional experiences, both good and bad. She shall have both joys and sorrows. She shall have love that will burn her like fire and pain that will purify her like water. God also informs her that even after having the experience of love, hatred, joys, sorrows, high and lows of life, her soul will not get satisfied. It will have a strong desire to be released from the blind prayer. Her tired and forgiven soul will beg to learn about peace instead of intensity. It will want to know how to leave the burning and cleansing and simply experience quite underrated peace. यहाँ जो गॉड है जब सरोजिनी नायडू को उसकी इस प्रेयर का आंसर करता है तो वो ये कहता है कि जब उसे ये अनुभव मिल जाएगा लव का, हेटेड का, जॉयज़ का, सोरो का, हाइज का, लॉज ऑफ लाइफ सारे उसको जब मिल जाएंगे तभी भी उसकी जो आत्मा है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो आत्मा है उसकी ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी कि वह
इस प्रेयर से बाहर निकले और उसकी जो थकी हुई जो आत्मा है वो इस बात की प्रार्थना करेगी कि मुझे इंटेंसिटी के बजाय मुझे शांति चाहिए। शांति किस प्रकार से प्राप्त करूं मैं, और यह भी जानना चाहेगी कि मैं किस प्रकार से ये जो बर्निंग है और जो क्लींजनिंग है और जो भी ये सिंपल एक्सपीरियंस है इनको मैं जो एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है इनको मैं छोड़ना चाहती हूँ और मुझे एक शांत पीस चाहिए। At last the poet finds solace in the knowledge that life and death, light and shadow are merely the two faces of God. अंत में हमारी जो कवियत्री है वो इस बात में संतोष प्राप्त करती है कि उसे ये ज्ञान मिल गया है कि लाइफ और डेथ, लाइट एंड शैडो और जॉय और सोरो ये सब केवल गॉड के दो फेस हैं। सरोजिनी नायडू कंपेयर्स लाइफ टू ए प्रिज्म। सरोजिनी नायडू इस जीवन की तुलना एक प्रिज्म से करती है। प्रिज्म प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लास से बना हुआ एक शेप होता है जिस पर प्रकाश की किरण डेविएट होती है। Sarojini Naidu compares life to a prism through which the color of life, including joy and sorrow, are realized. In the concluding stanza, God bends from his sevenfold height with care to teach his children the meaning of his grace. अंत में जो कंक्लूडिंग स्टेंजा है उसके अंदर जो गॉड है वो अपनी सेवन फोल्ड हाइट से, मीन्स ये माना जाता है कि जो गॉड है वो 7 आसमानों के ऊपर रहता है। यहाँ पर वही संदर्भ लिया गया है कि वो अपनी 7 फोल्ड 7 गुना जो अधिक ऊंचाई है वहाँ से वो नीचे बेंड करता है, झुकता है और बड़ी ही केयर के साथ अपने बच्चों को वो टीच करता है। क्या टीच करता है? द मीनिंग ऑफ हिज ग्रेस। Thus, the poem concludes with a belief that life and death are interlinked. इस प्रकार से ये जो पोएम है ये कंक्लूड होती है, अपना निष्कर्ष निकालती है अंत में इस बिलीफ के साथ कि जो लाइफ और जो डेथ है ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं विद वन अनदर। सो शैडो एंड लाइट आर जस्ट लाइक बर्थ एंड डेथ। इसलिए जो शैडो को हम यहाँ पर सोरोज भी कह सकते हैं कि जो जीवन के दुख हैं, एंड लाइट जो खुशियाँ हैं, जो जॉयज़ हैं, ये लाइक बर्थ एंड डेथ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाइक नाइट एंड डे हैं, लाइक इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग है। इनहेलिंग मीन्स श्वास को अंदर की तरफ लेना और एक्सहेलिंग श्वास बाहर निकालना। तो इन सब चीज़ों से उसने अपनी इन चीज़ को सरोजिनी नायडू ने कंपेयर किया है, समानता बताई है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स टू आवर टेक्स्ट। इन चाइल्डहुड प्राइड आई सेड टू दी, O thou who madest me of thy breath, speak, Master, and reveal to me thine inmost laws of life and death. In these first 4 lines, the poetess says to God, she says that I am made of your breath and you are my master, so please reveal to me the innermost laws of life and death. I want to know all the secrets. Please tell me. Then again she says, give me to drink each joy and pain which thine eternal hand can meet. She says that
I want to drink each joy and pain. Means I want to experience each joy and each pain which your eternal hand can give to me. Meat means to give. For my insatiate soul would drain earth's utmost bitter, utmost sweet. And she says, कि my soul is insatiate. Insatiate means अतृप्त. तो मेरी जो अतृप्त आत्मा है ये वुड ड्रेन अर्थ्स अटमोस्ट बिटर अटमोस्ट स्वीट, कि जो पृथ्वी का जो सबसे अत्यधिक जो बिटर है, बिटर मीन्स कड़वा, इट मीन्स सोरोज, अटमोस्ट स्वीट, स्वीट मीन्स मधुर, इट मीन्स जॉयज. माई insatiate soul wants to drain every utmost bitter, every utmost sweet. Then further she says, spare me no bliss, no pangs of strife. Here spare means bachana, bliss means आशीर्वाद, पैंग मीन्स दर्द या पीड़ा, स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष या विवाद, विदहोल्ड मीन्स रोक कर रखना, होल्ड बैक करना, ग्रीफ मीन्स दुख, क्रेव, CRAVE, क्रेव मीन्स ग्रेट डिजायर. द इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लेक्स, जटिल. लॉर मीन्स नॉलेज गेन्ड थ्रू ट्रेडिशंस, मीन्स जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त किया हुआ ज्ञान, पुराना ज्ञान. ऑफ लव एंड लाइफ एंड मिस्टिक नॉलेज ऑफ द ग्रेव. Then the in this stanza, the poetess Sarojini Naidu says that spare me no bliss, no pang of strife, withhold no gift, कि मुझसे कोई भी गिफ्ट या जो भी ग्रीफ है, इट मीन्स कोई भी जॉय, कोई भी सोरो मुझसे बचा कर न रखा जाए, मुझे सब दिया जाए, क्योंकि मैं पूरी लाइफ को पूर्ण रूप में एंजॉय करना चाहती हूँ. द इंट्रिकेट लॉर ऑफ लव एंड लाइफ, कि जो जटिल जो नॉलेज है प्रेम का, जीवन का, और जो भी मिस्टिक नॉलेज है ऑफ द ग्रेव का, ग्रेव denotes here death, कि आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ. What a person experience, nobody knows that, only God knows that. So please tell me that mystic knowledge, I want to know that. And for this, I want to experience all the sorrows of life, all the enjoyments of life, so that I may be able to experience that knowledge, mystic knowledge. Lord, thou didst answer stern and low, child, I hearken to thy prayer. Then the Lord means God gave an answer which was stern, जो कि कठोर था, and low और थोड़ी धीमी आवाज़ में था. He said, child, I will hearken means listen carefully, कि मैं तुम्हारी जो प्रार्थना है उसको केयरफुली सुनूंगा. एंड दाई अनकंकर्ड साउल शैल नो ऑल पैसिनेट रैप्चर एंड डेस्पेयर, और जो तुम्हारी अनकंकर्ड सोल है, कंकर मीन्स विजित करना, अनकंकर्ड मीन्स जिसको विजीता नहीं गया हो, जिसके द्वारा किसी ने उसको आधिपत्य में न लिया हो. तो तुम्हारी जो सोल है ऐसी जिस पर किसी ने अभी आधिपत्य नहीं किया है, वो सोल तुम्हारी जान पाएगी कि किस प्रकार से, कि जो बहुत ज़्यादा पैसिनेट मीन्स हैविंग और एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. रैप्चर मीन्स हर्षोन्माद और डेस्पेयर मीन्स निराशा. तो जो हर्षोन्माद और जो निराशा की जो पैसिनेट जो भी भावनाएं हैं, वो तुम्हारी सोल सब कुछ जान पाएगी. Thou shalt drink deep of joy and fame, and love shall burn thee like a fire. कि तुम्हारी जो आत्मा है वो
जॉय और फेम को डीपली तरीके से ड्रिंक करेगी, इट मीन्स उसको इन्जॉय करेगी। एंड लव शैल बर्न दी लाइक ए फायर, और जो लव है वो उसको एक आग की तरह उसको जला देगा। एंड पेन शैल क्लींस दी लाइक ए फ्लेम, और जो पेन है, जो दर्द है, वो उसको बिल्कुल पवित्र कर देगा, उसको क्लेरिफाई कर देगा, साफ़ कर देगा उसे एक आग की लपट की तरह। टू पर्स द ड्रॉज फ्रॉम दाई डिज़ायर, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि जब एक मिश्रित धातु होती है, जब उसको आग पर तपाया जाता है तो उसमें से ड्रॉस निकलता है, धातु मल अलग निकल जाता है, और जो प्योर जो मेटल होता है वो अलग निकल जाता है। तो उसी प्रकार से जब भी ये सब कुछ होगा तो तुम्हारी आत्मा में से जो भी मल है, जो भी विकार है, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। सो शैल दाई चेस्ट एंड स्पिरिट yearn टू सीक फ्रॉम इट्स ब्लाइंड प्रेयर रिलीज, और तब तुम्हारी जो चेस्ट एंड जो स्पिरिट है, साफ सुथरी जो आत्मा है, वो यर्न करेगी। यर्न मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करेगी टू सीक फ्रॉम इट्स ब्लाइंड प्रेयर रिलीज, अपनी इस ब्लाइंड प्रेयर से रिलीज पाना चाहेगी। एंड स्पेंट एंड पार्डन्ड, और अपने आप को बीता हुआ और पार्डन्ड माफ़ी मांगा हुआ सा महसूस करेगी। स्यू टू लर्न द सिंपल सीक्रेट ऑफ माई पीस, और फिर वो वाद विवाद करेगी कि वह अब मेरे पीस के सिंपल सीक्रेट को जानना चाहती है, वो अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती है। मीन्स गॉड उसको कहता है कि तुम जो अभी प्रार्थना कर रही हो मेरे गूढ़ रहस्यों को जानने की, तुम्हें फिर उनको जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रहेगी। तुम केवल सिंपल सीक्रेट ऑफ माई पीस को जानना चाहोगी। आई बेंडिंग फ्रॉम माई सेवन fold height, I will teach thee to my quickening grace. Life is a prism of my light, and death the shadow of my face. फिर गॉड अपनी 7 fold हाइट से नीचे बेंड करता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस प्रकार से मेरी क्विकनिंग ग्रेस तुम्हें मिल पाए। एंड देन ही सेज लाइफ इज ए प्रिज्म ऑफ माई लाइट, कि लाइफ क्या है, मेरे लाइट का एक प्रिज्म है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट प्रिज्म ऑलरेडी। एंड डेथ द शेडो ऑफ माई फेस, और जो डेथ है वो मेरे फेस की ही शेडो है। इट मीन्स लाइफ क्या है, उसकी लाइट का प्रिज्म है, और डेथ उसके फेस की शेडो है। इट मीन्स ये दोनों गॉड की ही दी हुई है, इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सब एक समान है। दैट्स द होल पोएम। आई थिंक you got the explanation of this poem and you enjoyed the video. Thank you for watching. We will meet in the next video with some other poem. Till then, goodbye.